Hello students, how are you? Now we will start our chapter number 4, moving charges and magnetism. Okay, till now we have studied about the electricity, what is static electricity, what is current electricity, what is electric current. Okay, and we know how the current flows through a conductor, what are the requirements to flow a conductor, how much current we get. Okay, so we have studied about the electricity basically. So we are familiar about the electricity. Now we will move forward and we will study about the moving charges and magnetism. Moving charges and magnetism means when the current flows, when the current flows through a conductor is any magnetic field created. This chapter is also known as the magnetic effect of current. Okay, we have studied in the previous slides we have studied the heating effect of current. Okay, in which we have studied that the heat is created when the current flows, and then there is a one more effect of current, that is the magnetic effect of current. Now magnetic effect, so first of all we have to understand what is magnetic field. Magnetic field, you know what is magnetic field. Okay, we will study magnetic field in this chapter deeply. But magnetic field, you can realize that there is a magnetic field, like there is an electric field around a charge. कोई भी चार्ज होता है उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, that you have studied in the previous chapters. Now what is the magnetic field? Magnetic field is the region where the magnetic force can be experienced. Okay, magnetic field ऐसा region होता है जहाँ पे magnetic force experience कर सके. You have seen the magnet. Now you have seen that if a iron bar is bring near the magnet, then it attract. आयरन बार को आप मैग्नेट के पास में लाते हो तो क्या हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है. या दो मैग्नेट को पास में लाते हो तो डिपेंडिंग अपॉन देयर पोल्स दे अट्रैक्ट और रिपेल. So why they are attracting and repulsion? Because there is around a magnet there is a field is created where the magnetic field is experienced, and that is known as the magnetic field. Okay, जिसे हम क्या कहते हैं, magnetic field कहते हैं. Okay, so that is about the magnets, and some materials are also there which behaves like a magnet, that we will study in the next chapter called the matter and magnetism. In this chapter we will study about is any magnetic field around the conductor. किसी भी कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होती है नहीं होती है. करंट कंडक्टर की हम सिमेट्री चेंज करें, स्ट्रेट कंडक्टर है इसको आपने वायर सर्कुलर कर दिया, कॉइल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगी तो कितनी होगी. ओके, सो दिस वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. ओके, so the name of the chapter is moving charges and magnetism, but you can also say that this chapter is about the magnetic effect of current. Okay, so the question arises here is that if there is any magnetic field around the conductor. So in 1820 Christian Ørsted performed an experiment. ठीक है, Christian Ørsted साइंटिस्ट था, उसने एक एक्सपेरिमेंट करा था. He took the wire and he took the cell and he took a key. Okay, now what happens, the current flows through this wire from positive to negative. The current flows through this wire, and he took a magnetic needle, magnetic compass. You know what is a magnetic compass? It is a magnetized needle. It is a magnetized needle. Okay, so it is a magnetized needle which is moved with the effect of magnetism और विद द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ये एक निडल होती है जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होती है, मूव करती है. ठीक है, ये वाला जो एरो है ये आपको नॉर्थ पोल बताता है और ये वाला जो है वो आपको साउथ पोल बताता है. इसका यूज हम एज अ नेविगेशन भी यूज करते हैं, मैग्नेटिक कंपास का यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ. सो व्हाई इट डिफ्लेक्ट इट, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज डिफ्लेक्टेड ड्यू टू अर्थ मैग्नेटिज्म. हमारी अर्थ है, अर्थ के आसपास भी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसके कारण ये निडल क्या होती है, डिफ्लेक्ट करती है. ठीक है, वी हैव अ अर्थ मैग्नेटिज्म इन नेक्स्ट चैप्टर दैट वी विल स्टडी. सो दिस निडल, दिस मैग्नेटिक कंपास व्हेन ब्रिंग टू द नियर वायर, ये सर्किट जो है वो आपका क्लोज है. तो क्रिश्चियन ऑस्टर्ड ने जब इस मैग्नेटिक निडल को यहाँ पे लेकर आया तो उसकी जो डिफ्लेक्शन थी वो चेंज हो गई, या ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक निडल शो सम डिफ्लेक्शन. नॉर्मली मैग्नेटिक निडल ऐसा था
जब इसको पास में लेकर आए तो मैग्नेटिक नीडल में क्या हुआ, देयर इज अ डिफ्लेक्शन. ओके, so he observed that there is a deflection in the needle, so he noticed that there is some magnetic field around the wire. Then he changed the polarity of the battery, negative to positive, and then he observed that the deflection is on the other side. Magnetic needle ने deflection दिया, लेकिन वो किधर दिया, दूसरी side. Okay, magnetic needle give the deflection on the other side. Okay, now when he opened the switch, means there is no current. यहाँ पे अब कोई भी करंट नहीं है. And when he put the needle gives no deflection. needle ने कोई भी deflection नहीं दिया. So he concluded that there is a magnetic field around a current carrying wire. किसी current carrying wire के आसपास क्या होती है, magnetic field होती है. ठीक है. So he give this phenomena as a magnetic effect of current. Then he find the pattern of the magnetic field. So he observed that due to a circular wire there is a due to a straight wire there is a circular magnetic field. स्ट्रेट वायर के कारण सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, यहाँ पे क्रिएट होती है, और इस मैग्नेटिक फील्ड की अपनी पर्टिकुलर क्या होती है, डायरेक्शन होती है. इट हैज अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. ओके, so that for that we have the rules that we can calculate, so that we will see later. So now it is clear from this experiment, Oersted experiment, that there is a magnetic field around a current carrying wire, and if there is no current in the wire there is no magnetic field. अगर कोई भी वायर के अंदर करंट नहीं होगा तो उसमें कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी. Okay, so this is basically known about the magnetic field. Now this we will study later about this symmetry or this structure of the conductor and how the magnetic field is created. Before that you have given a one topic, that is the magnetic force. Okay, so you have given a one topic, that is the magnetic force. How the magnetic field can be experienced? The magnetic field can be experienced by the effect of magnetic force. Okay, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करी थी, आपको याद हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइन करी थी इस चैप्टर में. इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स पर चार्ज. इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स पर चार्ज. हाउ मेनी फोर्स या हाउ मच फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड. इन द सिमिलर वे वी विल डिफाइन द मैग्नेटिक फील्ड. How much force is experienced on the charge? This force is the electric force, and now we are going to study the magnetic force. हम क्या करने वाले हैं, magnetic force पढ़ने वाले हैं. We are going to study the magnetic force. Okay. So here also we will define the magnetic field. इसी से हम क्या करेंगे, magnetic field को define करेंगे. Okay. So suppose you have a magnetic field. We are going to represent magnetic field by B. जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को E से रिप्रेजेंट करा था, उसी तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड को B से रिप्रेजेंट करेंगे. तो मान लीजिए there is a one magnetic field. अब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे हमने माना है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सम एक्सटर्नल फैक्टर. ओके, मान लीजिए कि ये स्पेस है और इस स्पेस में ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड है. ओके, वी आर नॉट हियर स्टडी अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट. We are considering the magnetic field is present in the space due to some any source, due to some sources or due to any source. There is a magnetic field in the space, and there is a what? Okay, a charged particle. Now in this magnetic field, the charged particle enters. Okay. इस मैग्नेटिक फील्ड में, स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ से कहीं से एक चार्ज पार्टिकल क्या हो रहा है, इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है. तो मैग्नेटिक फील्ड, अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स विद द वेलोसिटी v. अ चार्ज पार्टिकल q enters with the velocity v by making some angle theta with the magnetic field. Okay, you understand? मान लीजिए स्पेस में कोई मैग्नेटिक फील्ड है और उस मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल किसी वेलोसिटी के साथ
v वेलोसिटी के साथ क्या करता है, इंटर करता है। ओके, अब जो हमने माना है कि यहाँ पे जो एंगल है थीटा, थीटा इज द एंगल, so this v will have two components। ओके, तो v के यहाँ पे दो कंपोनेंट होंगे, एक तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक ये वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा आपका v sin थीटा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा आपका v cos थीटा। ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा v cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा v sin थीटा। ओके, एंड देयर इज अ चार्ज q। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, चार्ज q जो है वो इंटर कर रहा है। देन अब इसमें क्या होगा, इस चार्ज से द चार्ज विच इज इंटर्स इन द मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ फोर्स। द चार्ज enters in magnetic field experience a, तो यहाँ पे जो कोई चार्ज पार्टिकल है वो जब यहाँ पे इंटर कर रहा है, ओके, so this charge particle enters in the magnetic field, it experience a force। यहाँ पे क्या करेगा, ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब ये जो फोर्स होगी ये किन किन चीजों पर डिपेंड करेगी, तो force depends on, first it is F। this force को हमने F माना है, आप चाहो तो FB भी ले सकते हो, F suffix B। so this force will be directly proportional to Q। चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा फोर्स उतनी ही ज्यादा होगी। ओके, so force we can say the force is directly proportional to the magnitude of the charge। second, F is proportional to, then it is v sin theta। now what is your v sin theta? v sin theta is the vertical component of the velocity। velocity की क्या है, ये वर्टिकल कंपोनेंट है। ठीक है, तो इस पर डिपेंड करेगा, cos थीटा पे डिपेंड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, दैट वी विल सी कि v cos थीटा पे क्यों नहीं डिपेंड करेगा, sin थीटा पे क्यों डिपेंड करेगा। so v is proportional to f is proportional to v sin theta। and third one is the f is proportional to v। जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी, मैग्नेटिक फील्ड जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी, फोर्स भी उस पर उतनी ही ज्यादा लगेगी। ओके, फोर्स उतनी ज्यादा लगेगी। अब इन तीनों को कंबाइन करते हैं, तीन चीजें हैं जिस पे डिपेंड करेगी फोर्स, इन तीनों को हम कंबाइन कर देते हैं। F इज प्रोपोर्शनल टू क्यू वी साइन थीटा इंटू, ओके, क्यू वी साइन थीटा इंटू। अब यहाँ पे कांस्टेंट k है और उस k की वैल्यू क्या है, 1 है, तो वी कैन राइट एज F इज इक्वल टू क्यू वी ई साइन, F is equal to QVB sin theta and this force is called as the magnetic force। इस फोर्स को हम बोलेंगे मैग्नेटिक फोर्स। इसका एक और नाम है, this force is also known as the Lorentz force। okay, this force is also called Lorentz। तो आपसे अगर पूछ ले व्हाट इज लॉरेंस फोर्स, तो आप ये बता सकते हो लॉरेंस फोर्स इज F equal to QVB sin theta। Okay, Lorentz was a scientist who calculated this force, so therefore it is called as the Lorentz force। अब यहाँ पे ये जो F equal to QV sin theta है, इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, because force is a vector quantity, so we can write F is equal to Q। अब ये जो V है वेक्टर क्वांटिटी है और जो B है वो एक वेक्टर क्वांटिटी, और ये आपका, so this F vector is equal to Q V vector cross B vector। okay, तो ये जो फोर्स कहलाती है, this force is known as the Lorentz force। इस फोर्स को हम बोलते हैं लॉरेंस फोर्स। okay, so this force is known as the Lorentz force। now let us take the case। okay, here we have QVB sin theta, ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। तो QVB sin theta, here we will take the different case। okay, तो यहाँ पे थीटा जो है वो अलग अलग हो सकता है, जरूरी नहीं है कि चार्ज पार्टिकल ऐसा है, चार्ज पार्टिकल हॉरिजॉन्टल भी आ सकता है, वर्टिकल भी आ सकता है, किसी तरह से भी आ सकता है। तो केसेस जैसे हैं, फर्स्ट इफ
थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यदि यहाँ पे थीटा 0 डिग्री है, यहाँ पे थीटा 0 डिग्री है, मतलब चार्ज पार्टिकल जो है वो ऐसे वर्टिकली आता है। थीटा ये है, थीटा 0 डिग्री कब होगा जब, सॉरी वर्टिकली नहीं हॉरिजॉन्टली, थीटा 0 कब होगा जब चार्ज पार्टिकल हॉरिजॉन्टली आएगा। ओके, so that in that case F will be equal to, फोर्स क्या हो जाएगा 0, and second if theta is equal to 90 degree then force will be equal to QV, because sin 90 degree is 1, तो फोर्स जो हो जाएगा QVB which is a maximum force, जो क्या होगा एक मैक्सिमम फोर्स होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई चार्ज पार्टिकल अगर ऐसे आता है वर्टिकली, यहाँ थीटा है, ये थीटा जो होगा ये आपका इस पॉइंट पे जाके 90 डिग्री होगा। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल ऐसे आता है वर्टिकली और वी कैन से द परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल आएगा तो उस पर कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा, और यदि कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर इंटर करेगा तो उस पर फोर्स जो लगेगी वो क्या लगेगी, मैक्सिमम लगेगी, दैट इज QV। ठीक है, और इन दोनों के बीच में चार्ज पार्टिकल अगर कोई एंगल आता है 30 डिग्री 40 डिग्री से आता है तो फोर्स जो लगेगी वो QVB और 0 के बीच में लगेगी। तो दैट विल बी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, F इक्वल टू QVB। ओके, यहाँ पे एक और केस ले सकते हैं, इफ V इज इक्वल टू 0, यदि कोई चार्ज पार्टिकल के पास वेलोसिटी ही नहीं है। ओके, अगर कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट में आ गया या उसकी वेलोसिटी ही नहीं है तो फोर्स जो होगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे फोर्स जो होगी वो क्या हो जाएगी 0। सो व्हाट शुड बी देयर, द चार्ज पार्टिकल शुड मूव। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करने के लिए क्या चीज जरूरी है, चार्ज पार्टिकल शुड। ओके, so these are the three cases. Now we will define the magnetic field. We are going to define the magnetic field. Okay, तो ये वाला केस लेते हैं हम, F is equal to QVB। तो यहाँ से B कितना हो जाएगा, F अपॉन Q। ठीक है, यहाँ से B हो जाएगा F अपॉन Q। ठीक है, अब ये फॉर्मूला आपको कुछ पहचाना सा लग रहा है, फोर्स पर चार्ज, जो मैंने आपको फॉर्मूला में बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर चार्ज, देखिए वही चीज आ रही, मैग्नेटिक फील्ड इज फोर्स पर चार्ज, लेकिन यहाँ पे एक चीज और आ गई है, वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड जब चार्ज रेस्ट में होगा या मोशन में होगा, चार्ज रेस्ट में होगा या मोशन में होगा, दोनों केस में इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस होने के लिए या मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होने के लिए क्या चीज जरूरी है, द चार्जेस शुड बी इन मोशन विद सम वेलोसिटी, कुछ वेलोसिटी v के साथ क्या होना चाहिए, ये मूव करना चाहिए। तो v इज इक्वल टू F अपॉन Q। तो हाउ यू डिफाइन द मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड इज द फोर्स पर चार्ज हैविंग वेलोसिटी v। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर चार्ज, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड होगा फोर्स पर चार्ज विद वेलोसिटी v। ओके, यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी v। ओके, नाउ लेट अस कैलकुलेट द यूनिट। ओके, इसकी हम यूनिट भी निकाल लेते हैं। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, v इज इक्वल टू फोर्स की यूनिट न्यूटन, चार्ज की यूनिट कूलम, और आपकी वेलोसिटी की यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड। तो न्यूटन पर कूलम मीटर पर सेकंड, दिस इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, लेकिन इसको एक ऐसा यूनिट दी गई है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी काफी ज्यादा यूज होती है, तो इट हैज गिवन एन ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट हो जाएगी इसकी टेस्ला। इसकी ऐसा यूनिट होगी टेस्ला। टेस्ला इज द ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल, सॉरी ऑब्जेक्टिव आ जाता है, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। So how you define 1 Tesla?
1 Newton upon 1 Coulomb into 1 meter per second. तो 1 टेस्ला को आप कैसे डिफाइन करेंगे? So you can make the definition for here. If a charge of 1 coulomb enters in a magnetic field with a velocity of 1 meter per second square, experience a force of 1 Newton, then the strength of magnetic field is 1 Tesla. अगर कोई 1 कूलम चार्ज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की वेलोसिटी से किसी फील्ड में एंटर करता है, किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है और 1 न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो उस फील्ड की स्ट्रेंथ होगी 1 टेस्ला. ठीक है, तो यू कैन मेक द डेफिनेशन फ्रॉम हियर. ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 टेस्ला. अब इसमें एक और SI यूनिट भी होती है इसकी. It has a SI unit. SI unit is Tesla. It has a CGS unit. So CGS unit of magnetic field is Gauss. ठीक है, SI यूनिट जो होती है वो क्या होती है? Gauss होती है. Gauss is the magnetic field की क्या है? CGS unit. Okay, there is a relation between Gauss and Tesla that 1 Gauss is equal to 10 to the power minus 4. ठीक है, तो ये रिलेशन होता है गॉस और टेस्ला में. 1 Gauss is equal to 10 to the power minus 4. Okay, so this is all about the magnetic force. Magnetic force is also known as the Lorentz force and its formula is F is equal to QVB. और इसी के बाद हमने मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करा. द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज हैविंग द वेलोसिटी. ओके, एंड इट्स यूनिट इज 1 टेस्ला. SI यूनिट है टेस्ला. 1 टेस्ला को हमने डिफाइन करा और इसकी एक और यूनिट है गॉस. ओके, और रिलेशन है 1 Gauss इक्वल टू 10 to the power minus 4 टेस्ला. ओके, so this is the basic of the magnetic field. In the next slide we will study about the magnetic force experience in a current carrying field. Okay, thank you.